Hello friends, I am Ripan Patel and our today's session is second chapter of signal and system. Up till now we have covered with basic definition of signals and system. Then we have classified the signals and system, and then we have seen some example on the basis of signal and system. So basic fundamental regarding signals has been done. Okay, so today's topic is on the mathematical operation on signal and system. So we will start with a mathematical operation of signals first. So basic signals, so before going to start with a mathematical operation of signals, you must know the behavior of signals, which signals we have already done in a previous session. Okay, so in a signals we have gone through the types of signals, and that is numbers of signals we have. That continuous signal is that. Okay, if we go through the continuous signals, then discrete signal is then. Okay, so we have gone through that. Let's see what we have done. Okay, that. Okay, so 1 minute, we will see more detail. Okay, sorry. Okay, so this is a reason of our previous session. Okay, so signals that we have done, so that numbers of. Okay, so this is the classification of signals. So which are the signals that we have already gone through the. This is a continuous time and discrete time signals. It's IMP1, CT and DT, CTs and DT, continuous and discrete times. Okay, continuous, that is come in the form of xt, and discrete, that is come in the form of xn. Okay, discrete, that is come in the form of. Then we have a periodic, non-periodic, causal, non-causal, determination, random, even, odd, and then energy and power signals that we have done. Okay, so you must have to remember these things. For the continuous signals, this is continuous and that is represented by xt. Okay, and the same way, if xn is there or discrete form is there, that is defined by xn. Okay, so you must remember that. Okay, then periodic, non-periodic. Okay, the condition for that periodic, non-periodic, causal system, causal signal, non-causal. Again, this is a odd, even, or symmetrical and symmetrical signals. Okay, power signal and energy signals. Okay, so that we have done. Okay, and then we have gone through some basic signals. Again, it's IMP1, we can say. So in basic signals, we know the DC signals. Okay, so for the DC signals, what is the equation? ST or XT equal to 1. तो यहाँ क्या आएगा? XT equal to 1 for a T greater than or greater than 0, we can say, or T is T is in between greater or less than 0. Okay, तो वो कंटिन्यूस फॉर्म में मिलेगा, उसे हम डीसी सिग्नल बोलते हैं. सेम वे अगर वो हमें डिस्क्रीट फॉर्म में डिफाइन करना हो तो एक्सएन फॉर्म में आ जाएगा, डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफाइन करना पड़ेगा. ओके, सो दिस इज़ द डीसी सिग्नल. ओके, देन वी हैव अ यूनिट. ये सब आपको याद रखना है. यूनिट स्टेप का इक्वेशंस क्या फॉर्म हो रहा है यूनिट स्टेप का, ये है यूटी इंडिकेट यूनिट स्टेप, और यूनिट स्टेप का बिहेवियर इस तरह है, और डिस्क्रीट फॉर्म में यूएन आ जाएगा. ओके, डिफरेंट वैल्यू के लिए. ओके, फिर वी हैव दैट impulse function, then sinusoidal waveform signals is there. Okay, exponential signals, ये सब आपको याद रखना है क्योंकि ये आगे ऑपरेशंस में आने वाला है. ओके, then we have a यूनिट इम्पल्स. ओके, यूनिट पल्स इज देयर. रैम्प सिग्नल्स इज देयर. रैम्प किसे बोलते हैं? इस तरह लीनियरली इंक्रीज होगा तो उसे हम बोलते हैं रैम्प सिग्नल्स. ओके, तो दोनों के लिए रैम्प सिग्नल्स, ये फॉर अ कंटिन्यूस और दिस इज़ फॉर अ डिस्क्रीट. डिस्क्रीट में इस तरह, पर बिहेवियर इस तरह ही रहेगा. then we have a signal function is there. Okay, so these are some basic signals that we have already
done up till now. Okay, so on the basis of these signals, now second chapter is there. So in second chapter we will go through some basics operation of that, we can say basic operations. Okay. Okay. Sorry. Okay. So in that we will see some mathematical operations of signal and system. So in mathematical, as name say, mathematical operations are there. Okay, so mathematical operations, so we have a summation and addition is there, multiplication is there. Okay, so they are the mathematical operations. So these are the mathematical operations that we have to perform. Amplitude scaling is there. Okay, addition of signals, subtraction of signals, multiplication of the signals, we have to find even part, odd part, differentiation of the signals, integration of the signals. Okay, so these all are the related with the amplitude side of the signals. Okay, then we have a more function that we have a time based operation is there. So time shifting, time scaling, okay, time reversing. Okay, so these are the ऑपरेशंस ऑफ सिग्नल्स. ओके, आप समेशन करवाना है, मल्टीप्लिकेशन करवाना है, ओके, डिवीज़न कर, सब्सट्रैक्शन करवाना है, डिफरेंशिएशन करवाना है. ओके, सो दैट वी विल सी. ओके, सो our today's session is on the basis of this. Okay, dependent variable. Okay, amplitude base. Okay, so first of all we know the basic things that the indication of variable of ct normally, that is t. ct में जो वेरिएबल ct दैट इज़ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स की बात हो रही है. दूसरा होगा dt दैट इज़ अ डिस्क्रीट फॉर्म. ओके, दूसरा होगा तो डिस्क्रीट फॉर्म में n आएगा और कंटिन्यूस में t आएगा. दैट वी ऑलरेडी नो. ओके, सो ये आपको याद रखना है, डिस्क्रीट कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट. So now let's start with this amplitude. This we will see in the next lecture. Okay, but here we will see this portion only. Okay, अभी हम यही पोर्शन देखेंगे. इसमें देखेंगे एम्पलीट्यूड स्केलिंग क्या होता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, देन इवन और डिफरेंशिएट एंड इंटीग्रेशन इज देयर. ओके, सो now let's start with the amplitude scaling. Okay, so here we have amplitude scaling of signals. Here we have gone through the amplitude scaling of the continuous signals. Okay, amplitude scaling of the signal means changing the amplitude of the given continuous signals. So amplitude scaling means जो signals दिया हुआ है उसका amplitude change करना है. ओके, तो हम कैसे करेंगे? सो वी डिनोट xt जो हमें दिया हुआ है, तो उसका एम्पलीट्यूड अगर चेंज करना है तो आउटपुट क्या होगा और दूसरा सिग्नल क्या फॉर्म होगा, अगर रिजल्टेंट सिग्नल्स क्या होगा, तो उसको हम ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सिग्नल्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो माय सिग्नल, न्यू सिग्नल आफ्टर amplitude scaling, that is a into xt, where xt is my input signal, we can say ये मेरा ओरिजिनल सिग्नल है और एम्पलीट्यूड स्केलिंग करना है तो मुझे उसको a के साथ मल्टीप्लाई करूँगा. a इज़ सम कांस्टेंट वैल्यू. ओके, अब मैं यहाँ a की वैल्यू चेंज करूँगा तो क्या होगा, ये ओवरऑल वैल्यू चेंज होगा. अगर 1 करूँगा तो उसका एम्पलीट्यूड कोई 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा. 2 कर दूँगा a की वैल्यू तो उसका एम्पलीट्यूड 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा. सो लेट्स सी हाउ इट्स वर्क्स. सो लेट्स से वन एग्जांपल इज देयर, xt इज़ ut. सो जो हमारा xt है वो क्या है, अभी हमने ut लिया है. ut मीन्स यूनिट सिग्नल्स हमने लिया हुआ है. अब यूनिट सिग्नल्स का बिहेवियर हमें पता है. दिस इज़ द बिहेवियर ऑफ यूनिट सिग्नल्स. 0 पे 0, 0 पे 1 हो जाएगा और फिर कंटिन्यूस उसकी वैल्यू 1 रहेगी. ओके, ये वैल्यू 1 रहेगी एंड दैट इज़ शो हियर. वो यहाँ दिखाया हुआ है. ओके, दैट इज शोन हियर. ओके, वो दिखाया हुआ है यहाँ. ओके, सो xt इक्वल टू ut. नाउ देन माय टाइम स्केलिंग सिग्नल अब क्या होगा, ut मुझे एग्जांपल में दिया है ut. सो माय yt क्या होगा, a इंटू ut होगा. अब ut हमारा ये दिया हुआ है अभी, उसका एम्पलीट्यूड यहाँ अभी 1 है. अगर y, अब मैं
एम्पलीट्यूड स्केलिंग करूँगा तो ए इक्वल टू क्या रखूँगा, लेट से आई हैव पुट 2, तो अगर ए इक्वल टू 2 रखूँगा तो माई न्यू सिग्नल वाई टी इक्वल टू 2 इंटू यू टी होगा। तो नाउ अब जो सिग्नल मिलेगा वो एम्पलीट्यूड बढ़ के मिलेगा, दिस इज़ माई 2, अब यहाँ 2 मिलेंगे। ओके, लेट से अगर ए इक्वल टू में -1 रख देता हूँ तो वो सिग्नल कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा। देखो ये सिग्नल नीचे, एम्पलीट्यूड होगा -1। ओके, लेट से ए इक्वल टू 0.05 तो एम्पलीट्यूड आधा हो जाएगा। ओके, सो फ्रॉम दैट आई कैन से कि भी एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा है एज आई चेंज द वैल्यू ऑफ ए। अगर ए की वैल्यू में चेंज करूँगा तो मेरा सिग्नल क्या एम्पलीट्यूड हो रहा है, एम्पलीट्यूड दैट इज चेंजिंग। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड स्केलिंग ऑफ अ कंटिन्यूस सिग्नल। ये कंटिन्यूस सिग्नल है और उसमें ये भी यूनिट सिग्नल लिया हुआ है। ओके, सो दिस इज़ अ एम्पलीट्यूड स्केलिंग। आई होप यू हैव क्लियर विद दिस। ए की वैल्यू चेंज करो तो अकॉर्डिंगली यू कैन चेंज दी एम्पलीट्यूड। दिस इज़ माई इनपुट एंड दिस इज, अब ये जो मिल रहा है वो चेंज होके मिल रहा है। ओके, अकॉर्डिंग द वैल्यू ऑफ ए। ओके, नाउ लेट्स से ये जो था दिस इज़ फॉर अ कंटिन्यूस सिग्नल। सो सर डिस्क्रीट में क्या होगा, तो डिस्क्रीट में ये होगा। सो नाउ एम्पलीट्यूड स्केलिंग ऑफ द डिस्क्रीट सिग्नल। अब डिस्क्रीट सिग्नल्स को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, कुछ इस तरह। तो उसमें यूनिट सिग्नल क्या होगा, इसमें भी हमने यूनिट सिग्नल ही लिया हुआ है यू, और नाउ इट्स ए यू एन। अब ये यू एन है तो यू एन के लिए अब क्या होगा, तो पता है कि भाई 1 पे भी 0 और 1 होगा, फिर कंटिन्यूस 1 रहेगा। ओके, तो अलग अलग वैल्यू के लिए मीन्स 0 पे 1, 1 पे भी 1, 2 पे भी 1, 3 पे भी 1, 4 पे भी 1। तो यू एन मेरा क्या होगा, यू एन इक्वल टू अगर मेरे को लिखना हो तो कुछ इस तरह होगा कि भी 0 पे 1 है, मतलब 0 पे 1 हो रहा है, बाकी टाइम 1 ही रह रहा है, बाकी टाइम 1 ही रह रहा है, बाकी टाइम 1 रह रहा है। और हमें पता है कि भाई 0 अगर नेगेटिव वैल्यू होगा तो 0 वैल्यू पे रहेगा। तो ये रहा 0 और यहाँ से मुझे 1 मिल रहा है। तो ये हो गया मेरा यूनिट डी सिग्नल, यूनिट डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। ओके, तो वो ये रहा, देखो 0 पे 1, 1 पे 1, 2 पे 1, 3 पे 1, 4 पे 1। ओके, बाकी टाइम 0, ये सब 0 वैल्यू है। ओके, तो ये हो गया मेरा एक्स एन और इट्स ए यू एन, दैट इज यूनिट रैम्प है, इसलिए सॉरी यूनिट सिग्नल है, दैट्स वाई। अब मैं इसको एम्पलीट्यूड स्केलिंग करना है तो सेम थिंग जो हमने कंटिन्यूस में लिया हुआ था, वाई एन इक्वल टू ए इंटू यू एन होगा, ए इंटू यू एन। ए की वैल्यू चेंज करो, ए की वैल्यू में यहाँ 2 रख देता हूँ तो क्या होगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरा एम्पलीट्यूड ना अब क्या होगा, 2 हो गया। देखो अब एम्पलीट्यूड 2 हो गया। तो मेरा इनपुट सिग्नल ये था, आउटपुट सिग्नल कुछ इस तरह मिला मुझे आफ्टर स्केलिंग, तो एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है। ओके, सो दैट्स वाई इज अ नेम एज सिंपल फॉर्म ही है, ए से मल्टीप्लाई कर रहा है। okay? अब यहाँ याद क्या रखना है, देखो ये एक चीज़ आपको याद रखनी है कि भाई अगर कोई इन डिस्क्रीट फॉर्म सिग्नल 0 से स्टार्ट होता होगा 0, तो यहाँ दिखाया होगा ये एरो, सॉरी ये देखो ये एरो दिखाया हुआ है, ये एरो इंडिकेट, जो ये एरो दिखाया हुआ है कि ये वैल्यू 0 पर है, एक्सिस पे ये वैल्यू 0 पर इंडिकेट बता रही है। अगर कुछ इस तरह आपको दिया हुआ है कि भाई 3, 2, 5, अगेन 1, ओके, और इसको कुछ इस तरह दिखाया गया है तो दिस 2 इज़ इंडिकेट, अगर एक्सिस पे आप ड्रॉ करोगे तो ये 0 पे होगा, क्या होगा मेरा एम्पलीट्यूड 2 आएगा, फिर 1 पे 5 मिलेगा, 1 पे 5 मिलेगा एंड 2 पे 1 मिलेगा, ये 1 पे 5 मिलेगा, ये 2, और ये -1 पे 3 एम्पलीट्यूड होगा, -1 पे 3 एम्पलीट्यूड होगा। ओके, सो दैट एरो इंडिकेट 0 पोजीशन। ओके, सो दैट्स वाई हियर इट्स अ गिवन। ओके, 0 पोजीशन दिया हुआ है। ओके, कि भाई एम्पलीट्यूड यह है। सो आई होप यू हैव क्लियर विद द एम्पलीट्यूड स्केलिंग ऑफ कंटिन्यूस सिग्नल एंड ए डिस्क्रीट सिग्नल। ओके, सिंपल ये चीज़ आपको याद रखनी है भाई, किस तरह हो रहा है और इक्वेशन क्या हो रहा है। इक्वेशंस
दिस इज इक्वेशन, दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस. ओके, दोनों आपको पता होना चाहिए. ओके, नाउ सो इट्स द एम्पलीट्यूड स्केलिंग. नाउ नेक्स्ट, that is the addition of signals. So as name say, addition means you have to add 2 signals or more signal. हमें यहाँ 2 signals दिए. now addition of continuous signal हम पहले देखते हैं. तो continuous signals में क्या है, addition x1 and x2, these 2 are the signals. अब वो कौन से signals है, तो let's see एक examples हम ले लेते हैं कि भाई कि दोनों signals कौन से हैं. तो भाई x1 हमने लिया हुआ है, then is that is UT, unit signal, and x2 is your ramp signal. ओके, तो अब हमें पता है कि भाई यूनिट सिग्नल का बिहेवियर कुछ इस तरह है और रैम्प सिग्नल का इस तरह है. ओके, ये यूनिट सिग्नल का बिहेवियर और ये रैम्प का पता है कि लीनियरली इंक्रीज होगा. जो टाइम की वैल्यू होगी उतना ही एम्पलीट्यूड वैल्यू होगी. यहाँ 1 होगा तो यहाँ भी 1, यहाँ 2 होगा तो 2. ओके, दैट्स वाई वी गॉट दैट. ओके, सो दैट वी नो. ओके, अब दोनों का समेशन करना है. एडिशन मीन्स समेशन ऑफ दैट टू. ओके, तो नाउ लेट्स गो थ्रू द एग्जांपल. लेट्स xt इक्वल टू ut एंड x2 इक्वल टू rt. नाउ समेशन ऑफ दैट टू मीन्स दो यूनिट सिग्नल और रैम सिग्नल का समेशन करना है. तो नाउ लेट्स से यूनिट रैम में यूनिट स्टेप 1 से इन्फिनेटिव फॉर्म में ले रहा हूँ और सेम वे रैम सिग्नल भी मैं 1 से इन्फिनेटिव फॉर्म में ले रहा हूँ. ओके, सो नाउ द व्यू फॉर्म इज़ गिवन हियर कि भाई ये रहा मेरा x1 यूनिट रैम. देखो यहाँ 0, यहाँ 0, फिर यहाँ 1, वो हमें पता है यूनिट ये सिग्नल का. अब रैम्प का देखो, रैम्प यहाँ से कुछ स्टार्ट किया हुआ है -2 से, यहाँ भी -2 से स्टार्ट किया हुआ है, यहाँ भी वो पता है कि लीनियरली इंक्रीज़ होगा कि भाई -1 हो सॉरी 1 होगा तो 1, 2 होगा तो 2 वैल्यू, 3 होगा तो 3 वैल्यू, 4 होगा तो 4 वैल्यू. ओके, -1 होगा तो -1, -2 होगा तो -2 वैल्यू. ओके, सो दैट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ रैम्प सिग्नल वी नो. ओके, एंड दैट इज़ गिवन इन द टेबल कि भाई -2 पे x1 की वैल्यू क्या है, -2 पे x1 की वैल्यू क्या है 0, -2 पे x1 0 एंड x2 की वैल्यू -2 है. यहाँ ये नीचे आएगा, सो -2. ओके, देन -1 पे x1 तो 0 ही है एंड x2 -1 है, ये -1 है. ओके, देन 0 पे दोनों की वैल्यू 0 है, तो 0 पे ये देखो 0 पे ये भी 0 होगा, ये भी पहले 0 होगा और फिर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा. 0 पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यूनिट रैम क्या होगा, यूनिट सिग्नल 1 हो जाएगा और रैम सिग्नल 0 पे यूनिट 1 और रैम 0, वो यहाँ दिख रहा है. फिर देखो, फिर 1 पे इसकी वैल्यू 1 है, इसकी भी 1 है, 2 पे इसकी 2 है और इसकी 1 ही रहेगी, 3 पे इसकी 3, इसकी 1. तो रैम्प की सिग्नल चेंज होगी 3 पे 3. ओके, 3 पे 3, 4 पे 4, 5 पे 5, और ये तो कांस्टेंट 1 ही रहेगा, वो हमें पता है. ओके, अब समेशन करना है तो देखो फॉर अ डिफरेंट टाइम वैल्यू क्या होता है एम्पलीट्यूड. -2 पे अगर सम करें हम दो सिग्नल्स का, तो इसकी वैल्यू यहाँ 0 है, यहाँ 0 और यहाँ -2 है, तो ओवरऑल आउटपुट क्या मिलेगा, दोनों का सम 0 + -2, 0 + -2, तो वैल्यू आएगी -2. तो एम्पलीट्यूड क्या आएगा, -2 आएगा. तो हमें दिख रहा है यहाँ, तो आउटपुट, दिस इज़ अवर आउटपुट सेशन, ये हमारा आउटपुट है. ओके, फिर -1 पे भी -1 मिलेगा. टाइम 0 होगा तब इसकी वैल्यू 0 है और इसकी वैल्यू 1 है, तो हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा. ओके, देन 1 पे इसकी वैल्यू क्या है 1 है और इसकी भी वैल्यू 1 है, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा 0.2 मिलेगा. देन 2 पे इसकी वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू 1 है, तो दोनों का सम 2 + 1, तो क्या मिलेगा हमें 3 मिलेगा. यहाँ वैल्यू 3 पे इसकी 3 है, यहाँ 1 ही है, तो हमें मिलेगा 3 पे 4 मिलेगा. ओके, सो यू कैन से दिस इज़ अ ग्राफ, आउटपुट ग्राफ, ओके, ऑफ दिस 1 and 2. ओके, so simply summation is there.
एम्पलीट्यूड का समेशन फॉर द डिफरेंट टाइम हमने किया हुआ है, अलग अलग टाइम पे एम्पलीट्यूड क्या आ रहा है दो सिग्नल्स का सम होके, वही हमने आउटपुट में दिखाया हुआ है. सो आई होप यू हैव क्लियर विद दैट एडिशन ऑफ two signals. Okay, so this is for a continuous. Now let's go for the discrete form. So now it's simple for you. discrete में क्या होगा, देखो discrete में भी वही सिग्नल हमने लिए हुए हैं. एक लिया है यूनिट सिग्नल और दूसरा लिया है रैम. अब रैम का बिहेवियर कुछ यूनिट में इस तरह, डिस्क्रीट में इस तरह होगा. तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, x1 क्या होगा, देखो 0 पे 1 और बाकी टाइम पे 1 ही रहेगा. और इसमें देखो 0 पे 0, फिर ये लीनियरली इंक्रीज़ होगा और ये यहाँ लीनियरली डिक्रीज़ होगा. वो दिख रहा है, लीनियरली डिक्रीज़ होगा, ये कांस्टेंट 1 रह रहा है. ओके, और अलग अलग n की वैल्यू हमने डिफाइन की है, अलग अलग टाइम. यहाँ n वैल्यू आएगा, टाइम नहीं आएगा, n आएगा. ओके, अगर हम -2 पे सम करें तो 0 -2 तो -2 मिलेगा, तो ये वैल्यू यहाँ आएगी. यहाँ इन दोनों का सम क्या आएगा, -1 आएगा, तो -1. यहाँ ये 1 है और ये 0 तो होगा 1. यहाँ ये 1 है और ये भी 1 है तो यहाँ होगा 2. यहाँ ये 1 है और ये 2 है तो यहाँ होगा ये 3. यहाँ ये 3 है और ये 1 है तो यहाँ होगा ये 3 पे, यहाँ 4 पे मिलेगा. ओके, सो हियर यू कैन से कि भी 0 पे यहाँ मुझे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है. 1 पे 2, तो 0 पे मुझे क्या मिल रहा है, 1, देन 2 3 4 और नेगेटिव में -1 -2. ओके, सो ये एरो इंडिकेट किया हुआ है भाई. आउटपुट जो मिल रहेगा उसमें ये सिग्नल्स होगा. ओके, डिस्क्रीट का ये इनपुट था मेरा, अब ये आउटपुट मेरा है. ओके, और दिस विल शो अगेन 0 इंडिकेशन, 0 टाइम पे क्या है और 0 n की वैल्यू पे क्या है. ओके, so this called addition of signals of discrete signals. Okay, so I hope you have clear with the addition of continuous and discrete signals. Okay, same way we have a subtraction. Okay, so subtraction में क्या है, सेम जो एडिशन किया अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है. so same value we have chosen, but here देखो x1 माइनस स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है, ऑब्वियस x1 माइनस x2. ये कंटिन्यूस के लिए किया है, डिस्क्रीट के लिए किया है. बट हियर देखो x1 हमने क्या लिया हुआ है, रैंप सिग्नल है, और x2 क्या लिया हुआ है, यूनिट सिग्नल. लास्ट में ये यूनिट था और ये रैंप था, बट यहाँ चेंज किया हुआ है. अब देखो क्या हो रहा है कि भाई ओके, सो क्या होगा, देखो ये पोजीशन, ये माइनस ये करना है, ये माइनस ये, और दिस इज़ योर आउटपुट. ओके, तो यहाँ वैल्यू क्या है, 0 है और यहाँ वैल्यू क्या है, 1. तो 0 -1 तो क्या होगा, -1 होगा. तो ये मुझे यहाँ क्या मिलेगा, -1 मिला. फिर यहाँ देखो यहाँ क्या होगा, इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 1, तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, मिल रहा है 0. ओके, फिर यहाँ ये इस पोजीशन पे यहाँ इसकी वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू 1 है, तो 2 - 1 क्या होगा, 1 होगा, तो मुझे ये 1 ही मिलेगा. फिर 3 - 1 तो यहाँ मुझे मिलेगा 2. ओके, और कंटिन्यूस इंक्रीज होगा. ओके, सो आई होप यू हैव क्लियर विद द सब्सट्रैक्शन ऑफ कंटिन्यूस सिग्नल्स. ओके, सेम थिंग फॉर अ डिस्क्रीट फॉर्म. ये हमारा डिस्क्रीट फॉर्म का सिग्नल्स है, यहाँ भी देख सकते हो. सेम ये जो यहाँ लिया है वही चीज़ यहाँ है. देखो ये रैंप सिग्नल, ये यूनिट सिग्नल, इन दोनों का माइनस करोगे, ये माइनस ये करोगे, तो ये वैल्यू के लिए हमें क्या मिलेगा, 0. ये के लिए 1 - 1 अगेन 0. ये 2 - 1, ये 2 एम्पलीट्यूड है, 2 माइनस इसका एम्पलीट्यूड 1 है, तो 2 - 1 2 - 1 1, 3 - 1 2. ओके, एंड देन 4 - 1 3. ओके, सो अलग अलग वैल्यू के लिए आपको अलग अलग वैल्यू मिल रही है. ओके, सो अब आउटपुट इंडिकेट करोगे आप, तो देखो यहाँ 0 की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हो रही, तो दैट्स वाई इट इज़ गिवन. बट यार जो डिफरेंस आ रहा है उसमें देखो 0 पे कौन सी वैल्यू इंडिकेट हो रही है, -1. तो देखो यहाँ इसने -1 पे इंडिकेट किया हुआ है.
फिर 1 पे 0 है तो 1 पे 0, 2 पे इसकी एम्पलीट्यूड 1 है तो 1, 3 पे 2 है, ये इसका है. ओके, सो आई होप you have clear with it. This is called as subtraction of continuous and discrete. Okay, now then we have a multiplication. So multiplication of both the signals x1 into x2. Okay, now here some random signal is taken. Okay, this is your ramp signal, we know. Okay, linearly, but this is समथिंग डिफरेंट, वी कैन से कोई रैंडम सिग्नल लिया हुआ है. ओके, सो क्या होगा उसका मल्टीप्लिकेशन, सिंपली मल्टीप्लाई एम्पलीट्यूड का करना है. ये एम्पलीट्यूड बेस है, ऑल आर द एम्पलीट्यूड बेस. ओके, देखो यहाँ क्या है, इसका एम्पलीट्यूड 1 है और यहाँ क्या है, इसका एम्पलीट्यूड -1. 1 इंटू -1 क्या होगा, -1 होगा. देखो ये पॉइंट यहाँ मिल रहा है. देखो फिर इस यहाँ 2 है और ये -1, 2 इंटू -1 -2. देन यहाँ 3 है और ये अगेन -1 तो -3. फिर आप आगे देखोगे तो यहाँ 0 हो जा रहा है और ये कोई वैल्यू है तो ये तो 0 ही हो जाएगा. तो यहाँ मिलेगा मल्टीप्लिकेशन 0 देन 0. ओके, यहाँ भी 0 मिल रहा है बिकॉज ये एम्पलीट्यूड 0 है. ओके, सो आई गॉट दी आउटपुट लाइक दिस. सो this is a multiplication of continuous signal and same thing for the discrete signal. ओके, देखो आप यहाँ कुछ ये 0, इसकी कोई वैल्यू है तो पढ़ो यहाँ 0 हो जाएगा बिकॉज यहाँ 0 है. यहाँ कोई वैल्यू है दैट इज़ एम्पलीट्यूड 1 है और यहाँ -1 है तो यहाँ -1 मिलेगा. यहाँ 0 0 तो एम्पलीट्यूड 0. ओके, ये 1 1 तो 1, ये 0 2, 0 into 2 that is 0. Okay, then 1 and ये है 3 that's multiply by, so just 3. Okay, so ये हमारा आउटपुट सिग्नल. So it's called multiplication of continuous and discrete signal. Okay, so I hope you have clear with amplitude scaling, addition, subtraction and multiplication of the signal, that is continuous as well as discrete signal. Okay, so this will show the graphical representation and mathematically again you can write. Okay, and last we have some even and odd part. This portion we have already covered in last session. Okay, how to find the even signal and odd signal. So we have standard equation for the even signal and odd signals for a this is for a continuous and this is for the discrete. ओके, वो एग्जांपल हमने सॉल्व कर दिए हुए हैं लास्ट सेशन में कि भाई इवन और ऑड पार्ट्स कैसे हम फाइंड आउट करते हैं सिग्नल्स में से. ओके, देन वी हैव अ डिफरेंशिएशन. सो स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर द डिफरेंशिएशन yt इक्वल टू d/dt xt एंड इंटीग्रेशन के लिए yt इंटीग्रेशन -इन्फिनिटी टू सम इन्फिनिटी फॉर्म जाना x to dt. ओके, to that is a variable form. Okay, one example is given in the form of some inductor because we know that voltage across that inductor is nothing but a L di/dt, and same way here capacitor example is given. Okay, so one signals given here that is in the form of voltage and inductor and voltage and capacitor, voltage applied to the capacitor. Okay, so that will show the behavior of this and this will show the behavior of this. Okay, so this is the differentiation and integration part of that. Okay. So now here I just ended our session. Okay, and in next session we will see the टाइम बेस. नाउ हियर अप टिल नाउ व्हाट वी हैव डन दैट इज़ अ एम्पलीट्यूड बेस. यहाँ हमने जो दिया देखा दैट इज़ अ एम्पलीट्यूड का चेंज. उसमें समेशन आ गया है, मल्टीप्लिकेशन आ गया. उस चेंज कहाँ हो रहा है, एम्पलीट्यूड्स में चेंज हो रहा है. ये सब एम्पलीट्यूड्स में चेंज हो रहा है, टाइम में कोई चेंज नहीं आ रहा है. ओके, सो ये सब देखा दैट इज़ एम्पलीट्यूड बेस. अब हम देखेंगे टाइम बेस. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी दैट इज़ अ टाइम बेस चेंजेस. ओके, सो
that is our next session, and that we will see next. Also here just I just ended the session.